So we'll see some applications of graph today, some interesting findings. So let's have a quick review of whatever we learned, because those we will be using. So number one, we start with our graphs. Our first graph today will be an ST graph. Okay, ST graph. And in ST graph, what did you learn? In ST graph, every graph will be analyzed for two things: slope and area. So when you're talking about an ST graph, the ST graph's area is inconclusive. ST graphs का area हमें कुछ नहीं बताता है. The area is not going to give you any data. However, the slope is going to give you. How do you see the slope? Slope is always, remember, y data divided by x data. So it is a ST graph. That means on the y data we will have s whose unit is meters, and here we will have t whose unit is second. So इसका slope हमें क्या बताएगा? जो भी बताएगा उसका velocity, उसका unit होगा meter per second. Means the slope is going to tell me either about velocity or it is going to tell me of speed. Very good. Either velocity or it will tell me about speed. तो चलिए थोड़ा ST graphs के analysis करते हैं, right? So let me make some ST graphs and let's see scenario by scenario. Okay, this is one. Okay. The common sense लगाएंगे और देखेंगे क्या क्या हमें बताता है. और पार्टिसिपेट कीजिएगा तो ही आपको समझ में आएगा. ठीक है, सारे ग्राफ्स हमारे हैं S versus T. Three different cases we are going to see: S versus T, S versus T, and we are going to see every graph. I'm going to draw the graph in what you call blue or whatever color it is. चले, are we ready? चलिए पहला ग्राफ देखते हैं. Suppose I'm on an ST graph. Don't try to immediately answer. ठीक है, there's no fun in immediately answering. Try to understand and then try to answer. Say suppose I get a plot and we will see it from all angles. This is a plot that I have got. This is my graph. What is my graph? My graph is a straight line which is parallel to the x-axis, time axis. So what type of line is it? First of all, you ask what type of line is it? This is a sleeping line. स्लीपिंग लाइन का, अच्छा, ये सारे ग्राफ्स क्या है? ST ग्राफ्स है. सो यहाँ पे एरिया देखने का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि एरिया तो इनकॉन्क्लूसिव है. ऑल वी विल बी हंटिंग फॉर विल बी व्हाट? स्लोप, राइट? सो इफ यू लुक एट द स्लोप ऑफ दिस लाइन, अ लाइन व्हिच इज स्ट्रेट. स्लोप कैसे समझते हैं हम? बच्चा बिठा देने का. इस लाइन से बच्चा गिरेगा? नहीं गिरेगा. इसका स्लोप क्या है? 0. समझ में आता है? एक एक करके देखते हैं. हाँ, ठीक है. तो no, not infinity. So here we have a, if you look at the slope of this line, the slope is 0. Means try to put a baby out here. Will the baby go? Baby नहीं जाएगा, ठीक है ना? The slope is 0. Slope 0. Okay. What does the slope tell me? ST graph में slope क्या बताता है? Velocity बताता है. मतलब based on this I should be able to say that the velocity is 0 or the speed is 0. ठीक है ना? या फिर आप ये भी कह सकते हो speed is equal to 0. अब चलो इसको हम आर्ग्यूमेंट के साथ प्रूफ करके देखते हैं. ठीक है, आर्ग्यूमेंट के साथ प्रूफ करके देखते हो. मान लो ये दिस इज S. ऑन दिस एक्सिस व्हाट डू आई हैव? डिस्प्लेसमेंट, राइट? इसको कुछ एक वैल्यू दे दो. मान लो ये है, दिस इज राइट नाउ एट 10 मीटर्स. ठीक है, सुबह के 5 बजे 10 मीटर्स में ही था, सुबह के 6 बजे 10 मीटर्स में ही था, सुबह के 10 बजे 10 मीटर्स में ही था, दोपहर के ये गाड़ी तो मूव ही नहीं कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी 0 ही होनी चाहिए ना. Clear? Understood? So interesting. Bakul, did you understand? You can apply common sense also. Suppose you don't know slope. You look at the plot. It is having on the, what is this point? 0, 10. What is this point? 110, 210, 310. कब से ये गाड़ी 10 meters पे ही खड़ा है? This is the plot of a body which is at rest. A body at rest does not have velocity, does not have speed. And if you want to attack it from slope, you can also say slope is 0. Slope of a line, sleeping line, is always 0. And these are ST graphs, so the slope is going to tell me all about velocity. ठीक है ना? Right. My next plot is something which is like this. ये straight line है फिर से, लेकिन कैसा टाइप का स्ट्रेट लाइन है? स्टैंडिंग लाइन. स्टैंडिंग लाइन की स्लोप क्या है? इंफिनिटी है ना? मतलब मौत वाला सिनारियो है. इसका वेलोसिटी क्या है? इंफिनिटी है.
Can infinity be defined? No, it cannot be defined. So we will say velocity cannot be defined. अब जरा कॉमन सेंस लगाते हैं यार, सुबह के 8 बजे ये गाड़ी 2 मीटर पे भी था, 3 मीटर पे भी था, 4 मीटर पे भी था, 80 मीटर पे भी था, ये भूत ही तो हो सकता है ना। एक ही टाइम पे इतने सारे डिस्टेंस कौन रह सकता है? समझ में आ रहा है? दिस इज से 8 o'clock. At 8 o'clock, this was at 2 meters, 3 meters, 4 meters, 5 meters. Right now, can you be at two places at the same time? No. So this graph cannot exist. Common sense लगाइए। इसलिए इसकी slope infinity है और infinity को हम does not exist है. So therefore the velocity or speed does not exist. Have you understood? Okay, let's see our next graph. My next graph is something like this. What is this line? This line is a slanting line. Slanting line. इसकी स्लोप के बारे में आप क्या क्या कहोगे? नंबर वन, इससे पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि ये एक्यूट एंगल बना रहा है, पॉजिटिव स्लोप. एंड व्हाट अबाउट द स्लोप? इज द स्लोप वेरिंग और इज द स्लोप कांस्टेंट? कांस्टेंट, बिकॉज इफ यू मेक द बॉय ही स्लाइड्स डाउन विदाउट एनी जर्क, बम्प नहीं है. एंड स्लोप इज डिफाइंड बाय व्हाट? द एंगल मेड बाय द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. So you try to plot a positive direction of x-axis wherever you want. आपने यहां पे प्लॉट किया, आपने मानो यहां पे प्लॉट किया, आपने यहां पे प्लॉट किया, एंगल तो वही रहेगा. तो इससे हमें एक और चीज पता चलता है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, whether you calculate slope between these 2 points or these 2 points. Now what does the slope of a ST graph tell me? Speed or velocity. Now let me write here. So here what is the data I'm getting? I'm getting slope is equal to constant k. K means constant. Slope is constant. Slope is constant means what can I write? Speed is constant, or I can also write velocity is constant. क्या ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है? Body is covering equal distances in equal intervals of time. इसीलिए आप पढ़ते थे that the ST graph of a body in uniform motion is always a straight line. क्लियर हो रहा है अभी? इसके केस में हम क्या बोलेंगे? इसके केस में हम बोलेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस इज नॉट पॉसिबल. व्हाई इज दिस नॉट पॉसिबल? एट सेम टाइम देयर कैनॉट बी मोर देन वन वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है हमारे पास. अच्छा चिल्ड्रन, क्लियर हुआ? नाउ यू कैन आस्क, सर व्हाई डिड यू नॉट एनालाइज द एरिया फॉर एनी ऑफ दिस ग्राफ? बिकॉज द एरिया ऑफ एसटी ग्राफ डज नॉट गिव मी एनी डेटा, सो देयर इज नो पॉइंट इन फाइंडिंग आउट द डेटा. ये सब सिनारियोस है. अब हम प्रॉब्लम करेंगे तो भी समझ में आ सकता है. अच्छा एक और प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है? जैसे नाउ लेट्स सी लेट्स सी वन डेली लाइफस्टाइल केस. ओके, सी अ डेली, रोज दिन का एक प्लॉट देखते हैं. कैसा प्लॉट है? ऑलरेडी जब आप स्टार्ट करते हो, यू डोंट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, यू हैव सम डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी, सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज विथ यू, ठीक है? तो आप क्या करते हो? सपोज मैंने ऐसा एक लाइन ड्रॉ किया एंड आई राइट इट ओ ए नहीं लिखता हूं, oh sorry, okay, let me write it as AB. What does AB tell you? AB tells me हमेशा स्लोप देखो, स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट. AB tells me a portion of the journey where the velocity is constant and the velocity is positive. गाड़ी सामने की तरफ जा रहा है. It is like something on cruise. ठीक है? उसके बाद कुछ ऐसा हो गया मेरा जर्नी. अब क्या बता रहा है? मैं टोल गेट पे आके अगले 5 मिनट तक रुका हुआ हूं. देयर इज अ जैम. समझ में आया? जैसे ही टोल क्रॉस किया, ये मान लो मेरा नॉर्मल फर्स्ट जर्नी, मेरा नेक्स्ट वाला कुछ ऐसा बन गया, स्टिल नॉट स्ट्रेट. बीसी, कौन मुझे बताएगा सीडी क्या है? व्हाट डज सीडी टेल यू? नॉट ओवरआर, इन टर्म्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, सीडी इज व्हाट? एक्सीलरेशन का तो सवाल ही नहीं आता. आप एक्सीलरेशन एसटी ग्राफ से कैसे निकाल सकते हो बेटा? दिस इज एन एसटी ग्राफ. हाउ कैन यू फाइंड आउट एक्सीलरेशन फ्रॉम एसटी ग्राफ?
स्पीड कैसे इंक्रीज, क्या इज इट नॉट पॉसिबल? व्हाई नॉट पॉसिबल? आई हैव सेड इट्स नॉट परपेंडिकुलर, यू ऑल आर नॉट गेटिंग इट। बार में देखिए, इज इट अ स्लैंटिंग लाइन? यस। द स्लोप इज कांस्टेंट, मींस दिस इज आल्सो अ क्रूज जर्नी। नाउ कंपेयर द स्लोप ऑफ दीज टू लाइंस, किसका स्लोप ज्यादा है? CD। मतलब अगर आप यहां 70 के कांस्टेंट स्पीड में जा रहे थे तो ये 90 का कांस्टेंट स्पीड है, आपने गाड़ी को और भगाया है। समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद हम फिर रुक गए। क्लियर हुआ ये? ओके, वन मोर इन ST ग्राफ। दिस इज ST ग्राफ। दिस इज अ बॉडी A. What do you tell about A? A is a body which is moving with constant speed, right? And this is another body B. B is also a body moving with constant speed. Whose speed is more? A speed is more because the slope of A is more. अगर आप गाड़ी बच्चा यहां बिठाएंगे धाम से गिरेगा वो, इसकी स्पीड। क्या ST ग्राफ क्लियर हुआ है? ST ग्राफ वैसे सबसे आसान है, मजा आएगा तुमको जब हम VT ग्राफ करेंगे। ठीक है, चले VT ग्राफ में। आइए अब हम चलते हैं VT ग्राफ में, कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे इसके बाद। सो लेट मी मेक सम ग्राफ्स। उससे पहले थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं। VT ग्राफ, VT ग्राफ में क्या क्या होता है बोलो? VT ग्राफ में दो डेटा हमें मिलेंगे। स्लोप क्या बताएगा? स्लोप इज y डेटा बाई x डेटा। y में क्या है हमारे पास? मीटर बाई सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड, यानी कि स्लोप हमें बताएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज नथिंग बट एक्सीलरेशन के बारे में बताएगा। यस और नो? नंबर 2, इसका एरिया हमें क्या बताएगा? एरिया इज ऑलवेज x डेटा मल्टीप्लाइड बाई y डेटा, दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड, विच इज मीटर। ये हमें एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा। इज दिस क्लियर? विद दिस इन माइंड वी गो अहेड। ठीक है, चले आइए कुछ ग्राफ्स ड्रॉ कर लेता हूं जब तक आप ये सारे ग्राफ है VT VT VT। ओके, आर यू रेडी? आइए पहला प्लॉट देखते हैं। ये प्लॉट हमें क्या बता रहा है? द लाइन इज अ स्लीपिंग लाइन, दैट मींस इट्स स्लोप शुड बी 0। व्हाट डज द स्लोप ऑफ अ VT ग्राफ टेल मी? एक्सीलरेशन। दैट मींस यहां पे हमें क्या क्या डेटा मिल रहा है? स्लोप इज इक्वल टू 0, दैट मींस एक्सीलरेशन शुड बी इक्वल टू 0। व्हाट इज एक्सीलरेशन? Whenever velocity changes with respect to time, the velocity at 1 o'clock was, say this velocity is 20 meter per second। 1 बजे भी 20 मीटर था, 2 बजे भी 20 मीटर थे। V की वैल्यू भी कितनी है? 20। U की वैल्यू भी 20। V minus U 0, 0 divided by time always 0, so it proves that acceleration is equal to 0। कौन सा? हाँ, धीरे धीरे आएंगे अभी। ठीक है, अब कंबाइन करेंगे ना दोनों ग्राफ को। ये चीज समझ में आया आपको? There is no acceleration, velocity is constant, and she is very correct. This is uniform motion. Which one? This object is at rest. No, object is not at rest. Who said object is rest? This is the VT graph. This is not ST graph. At different times, this is on ORR you are driving, constant speed. So no acceleration. मजा आया आपको? ठीक है, और इसका वर्टिकल मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ गया वर्टिकल तो पॉसिबल ही नहीं, एक ही टाइम पे अलग अलग स्पीड थोड़ी हो सकता है, राइट? अब ये वाला ग्राफ को देखते हैं। ये ग्राफ क्या है? इट इज अ स्टैंडिंग लाइन, slanting line with a slope which is positive. Do you understand? The slope is positive. What does the VT graph slope tell you about? Here the slope is constant. Agreed? The slope tells me about what? Acceleration. That means the acceleration's value is constant. If acceleration is constant, it means constantly the leg is acceleration constant. The speed should increase. इसीलिए speed बढ़ रहा है। देखिए 1 बजे speed at 1 o'clock the speed was this much. At 2 o'clock the speed is this much. At 3 o'clock the speed is this much. एक constant rate में speed बढ़ना शुरू हो रहा है।
As a value. Constant, there will be value. This is what is you're studying in your chapter. Didn't I tell you your chapter is all about uniform motion? Motion in straight line of uniformly accelerated. So your acceleration in grade 9, if there is a VT graph in grade 9, the VT graph cannot be curved. It has to be a straight line. Are you getting it? Because your acceleration is always uniform in grade 9. Did you read about A1, A2? No. You read about U and V, but you never read about A1, A2. A has one value. This is the value. Clear? Let's say if the agar aisa hai, this is grade 11. Now what do we say? This is non-uniform acceleration. How do you find the slope of a curve? Slope of a curve varies because बच्चा यहाँ बिठाएंगे तो जोर से गिरेगा, यहाँ बिठाएंगे तो धीरे गिरेगा. The slope is varying. So how do you find the slope of a curve? Every point that you want to find the slope, you will draw tangents. Tangents are line which touches the graph at every single point. At single point. Now you yourself think. कहां पे स्लोप आपको ज्यादा मिल रहा है? इसका स्लोप सबसे ज्यादा है, इसलिए यहां बच्चा बिठाओगे तो आराम से गिरेगा पूरा. उसके बाद स्लोप यहां है, सबसे बच्चा मजे से गिरेगा यहां से. This is waiting for you in grade 11. This is non-uniform acceleration. Are you getting it? Acceleration is not constant. Now I want to draw a graph. I want to draw a graph something like this. Just see. Let's combine two graphs and study. हमारे okay, take it interestingly. This is my ST graph, right? And my plot is like this. What does it show? Slanting line, positive slope, constant slope. Slope क्या बताता है मुझे? For a ST graph, slope क्या बताता है? Speed and velocity. तो आप इसमें क्या लिखोगे? Constant velocity. If you are saying velocity and the velocity is positive. And if you are saying for speed, then you will say constant speed. अगर आपको ये सिनारियो कोई कहता है draw the equivalent VT graph, इसका equivalent VT graph कैसा होगा? इसका equivalent VT graph बड़ा easy है, sleeping line. Because velocity is constant, तो velocity constant आया. समझ में आ रहा है? Clear? उसी तरह मान लीजिए आपको किसी ने VT ग्राफ दिया. क्या ग्राफ दिया है? VT. VT ग्राफ का प्लॉट हमें क्या बताता है? स्लोप क्या बताएगा? एक्सीलरेशन बताएगा. दिस इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. दिस इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. बहुत अच्छी बात है. इसका कॉरेस्पॉन्डिंग AT ग्राफ कैसा होगा? स्लीपिंग लाइन होगा. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म. अब इंटरेस्टिंग चीज और करते हैं. मान लो हमारे पास एक और VT ग्राफ है. इनफैक्ट मेनी 11 क्लास चिल्ड्रन विल फंबल व्हाट यू आर स्टडीइंग नाउ. VT ग्राफ है और प्लॉट ऐसा है. क्या ये स्लैंटिंग लाइन है? है. इसका स्लोप कांस्टेंट है, पर इसका स्लोप नेगेटिव है. और स्लोप हमें क्या बताता है? एक्सीलरेशन. ये नेगेटिव एक्सीलरेशन है, मतलब यहां ब्रेक्स लग रहे हैं. सोचो ना, 8 बजे मेरा स्पीड था 60, 9 बजे मेरा स्पीड बन गया कितना? 40 और आगे, तो आई एम अप्लाइंग ब्रेक्स. द वेलोसिटी इज कमिंग डाउन. सो इट इज अ रिटार्डेशन केस. इसका अगर कोई AT ग्राफ बनाएगा तो कैसा बनाएगा? ये बनेगा T और इसका A नेगेटिव साइड में रहेगा इसका. दिस इज अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन but a negative acceleration, so the graph will be here. Did you understand this or not? You okay, 1 minute, don't worry. This is a VT graph. What does the slope of a VT graph tell me? Graph tells me about acceleration. The slope is positive, so the acceleration is positive. The slope is constant, acceleration is. So it's a positive constant acceleration, or should I say uniform acceleration? Uniform acceleration. Whatever time the acceleration is the same. This is a AT graph. This is a AT graph. Look at this one. The slope is negative, but the slope is constant. Bacha will not have any jerk while falling. A straight line, whether slanting or whatever, his this side or this side, his slope is always constant. So it's a negative constant slope.
It's a negative constant acceleration. It's a retardation. Right? Retardation. Constant retardation. But retardation. So retardation should be plotted negative way, na? That's why the plot has come below 0. Huh. Why was not the slope? Previously, Have you understood this now? Any doubt here? If there is doubt, then let me know. ठीक है, अब कुछ 80 graphs देखते हैं. 80 graph. 80 graph slope will not give us anything. So now we should see a little bit more about areas. ठीक है, आओ एक बढ़िया चीज देखते हैं, आपको मजा आ जाएगा. Now we're going to talk about some areas. This is a VT graph, speed time graph. Agreed? yes. So in speed time graph, I'm taking my plot like this. Speed time graph where the line is a straight line. What does the slope of a speed time graph tell me? What does the slope of a speed time graph tell me? क्यों इतना कंफ्यूज होते हो? What does the slope of a speed time graph tell me? Acceleration. Is the slope constant? Is the slope positive? Yes. So the acceleration is constant. I have one value of a. Is the graph starting from 0? No. The graph is starting from some value. This is what? This is a velocity axis. Some value it is starting from. Can I not write this as some initial velocity u? इतना initial से शुरू कर रहा है. ठीक आया ना? Very good. Now let me close this graph. टेंशन मत लो, आराम आराम से पढ़ो. Let me close this graph like this. अच्छा, ऐसा नहीं करते हैं, क्लोज कर देते हैं और इसमें कुछ फिगर्स नेम डाल देते हैं. Let's say this is A, this is B, and this is C. So this is a VT graph. Area under the VT graph gives me displacement. अगर आपको मन में कोई भी डाउट है तो एरिया लिख लो. एरिया इज ऑलवेज y डेटा मल्टीप्लाइड बाय x डेटा. व्हाट इज y डेटा बेटा? मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज x डेटा? सेकेंड कट मीटर. That means your eyes lit up now. This is talking about nothing but displacement. That means if I try to calculate the area under this graph, I should get displacement. मजा देखो, अब मजा आ जाएगा आपको. ये शेप कैसा दिख रहा है? ट्रेपीजियम. तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला को इजी करने के लिए हमने इसको ऐसे और ब्रेक कर लिया. ठीक है, अब कोई पेन वेन नहीं छुएगा, सब इधर मन लगाएगा. कैन आई से दैट द एरिया इज एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल? कह सकते हैं ना. तो इस एरिया को क्या लिखे बेटा? देखो तो एरिया इज इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया. ठीक है कि नहीं? रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा बोलो? U है और T है, UT. ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. कितना है? हाइट है BD. इतना लिख सकता हूं. अच्छा, अब जरा BD को अच्छी तरह से देखिए. BD, ठीक है. BD को मैंने ऐसे लिखा. BD को लिखने के लिए मैंने क्या किया? BD के नीचे AD ले आया और इधर भी AD लिख दिया. कोई गुनाह किया क्या? एक ही तो बात है ना. अरे ये दोनों तो कट रहे हैं ना ऐसे. यार BD को ऐसे नहीं लिख सकते, मजा ही नहीं देते तुम लोग. ऐसे लिख सकता हूं. अच्छा, BD बाई AD को क्या लिख सकते हैं? देखो तो राइज ओवर रन नहीं लिख सकता हूं. इसको रन नहीं लिख सकता हूं. राइज ओवर रन लिख सकता हूं ना. और AD को क्या लिख सकता हूं? AD इज नथिंग बट T एज पर द डायग्राम. कोई शक? राइज ओवर रन इज व्हाट बेटा? स्लोप इंटू T. और इस ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताता है?
एक्सीलरेशन बताता है, तो BD के जगह में AT लिख सकते हैं। और एरिया के जगह में डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। आ गया तुम्हारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यू गेट द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, S equal to ut plus half at square. You solved it analytically, now you have solved it graphically. How do you say that S equal to ut plus half at square? कर दिया आपके सामने प्रूफ। आपको विश्वास नहीं होता है तो एक बार फिर देख लो। Area under the graph should tell me displacement. Area is what? Rectangle area plus triangle area. Rectangle area is ut. ut हो गया। ut में कौन सा एरिया आ गया? ये वाला एरिया आ गया। ट्राइंगल का एरिया क्या है? हाफ BD इंटू टी, तो मैंने हाफ BD इंटू टी लिख लिया। BD को हमने क्या किया? BD के साथ हमने थोड़ा सा ट्यों ट्यों कर सकते हैं ना, तो हमने वो जानबूझ के इंट्रोड्यूस किया। तो BD बाई AD क्या है? राइज ओवर रन। यहां से इतना राइज किया, इतना रन किया, तो राइज ओवर रन मतलब ये कुछ नहीं तो बस स्लोप है। एंड VT ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? एक्सीलरेशन। तो स्लोप की जगह हम A लिख सकते हैं, तो AT हो गया, और AT ले आओ तो ये आ गया तुम्हारा। आर यू सीइंग द ब्यूटी? ऐसा एक और चीज देखें, आओ एक और VT ग्राफ देखते हैं। ये है VT ग्राफ, फिर से वही वाला प्लॉट। ये हमारा U है और ये क्या है? ये T है, ठीक है ना? दिस इज स्पीड वर्सेस दिस, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। नाउ से सपोज हम कुछ ऐसा निकालना चाहते हैं, फिर से वही एरिया वाला बना के रखते हैं। एरिया अंडर द ग्राफ शुड टेल मी अबाउट डिस्प्लेसमेंट। बस एरिया नहीं, मैंने ऐसे बना के रख लिया और ऐसे भी बना के रख लिया, ठीक है ना? नाउ चिल्ड्रन लुक एट दिस टाइम। एट दिस टाइम दिस इज द ग्राफ। So this is what my final velocity. My journey started from U when my time was 0. After traveling T time, so let me bring this here. After traveling T time, my journey ended here. Are you able to understand? So this ये point क्या होगा? ये point होगा y coordinate पे T रहेगा और x coordinate पे V रहेगा। और ये point क्या है? ये point is nothing but x coordinate पे 0, y coordinate पे 2. So this is my final velocity v. Agreed? This is my final velocity v. Now let me put some names: A, B, C, D, O, and say E. ठीक है? I am interested to find out what is my final velocity. Final velocity. My final velocity is what, beta? OA. OA is my final velocity. Agree करते हो? OA can be written as OD plus DA. लिख सकते हैं? OD को हम U लिख सकते हैं। DA को लिखने के लिए हमने कुछ मजेदार चीज किया कि DA के नीचे हमने DC लिया और एक और DC यहां पे लिख दिया। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है बेटा? V होता है। UU DA बाई DC कुछ और नहीं राइज बाई रन है। अच्छे से देखो तो, राइज बाई रन इनटू DC कुछ और नहीं T है। मजा आया? ये चीज कुछ और नहीं स्लोप है और T है, और ये U ही रह जाता है। और स्लोप ऑफ अ VT ग्राफ गिव्स मी, अरे तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं रहेगा, लोग बोलेंगे 9th का नहीं, ये नहीं सीखा तो क्या फिजिक्स पढ़ा? देखो V is equal to U plus AT. Your first equation of motion comes up. समझ में आ रहा है? आप ग्राफिकली भी प्रूव कर सकते हैं। Need not necessarily that you have to prove it analytically. बस ग्राफिकली प्रूव करने के लिए यहाँ पे थोड़ा जगलरी करते हैं हम। वहां भी हमने जगलरी, because you have to introduce that slope factor. So it's not so easy. See, I'm teaching it in one go, so for me it becomes a little bit easy. मैं भी confuse होता हूँ। आप पहली बार सीख रहे हो तो आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना चाहिए, so that after some time you don't fumble that which graph gives me what. Remember one thing, if I'm on an ST graph, always now remember like this. सबसे पहले grandfather ST graph, फिर father VT graph, फिर बेटा AT graph.
बेटा और ग्रैंडफादर एक चीज नहीं बताएगा, ग्रैंडफादर स्लोप में कुछ नहीं बताता है, बेटा एरिया में जाके कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। तो अगर आप नहीं, ग्रैंडफादर एरिया में कुछ नहीं बताता है, बेटा स्लोप में कुछ नहीं बताएगा। नाउ इफ यू लुक एट एन एसटी ग्राफ, नाउ लेट्स once again do this, जितना करोगे आप उतना सीखोगे। एसटी, वीटी, एटी, तीन ही तो चीज देखना है आपको। एरिया एंड स्लोप, इसका एरिया कुछ नहीं बताता है, एग्री करते हो? तो फिर इसका स्लोप भी कुछ नहीं बताएगा। डायगोनल रिलेशनशिप, इसका स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। तो इसका एरिया क्या बताएगा? अगर हम इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट बताएगा। इसका स्लोप क्या बताएगा? एक्सीलरेशन। और इसका एरिया क्या बताएगा? वेलोसिटी। डायगोनल रिलेशनशिप। याद करने की जरूरत नहीं, आप अपने आप बना सकते हो, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जैसे कि आपको कहता है कोई ग्राफिकल प्रॉब्लम देता है, ग्राफिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए, ये मैं लेके आया, जैसे ये प्रॉब्लम है, दिस इज द ग्राफिकल प्रॉब्लम, दे विल आस्क यू टू ड्रॉ द ग्राफ, लेट्स अंडरस्टैंड। ये एनालिटिकल नहीं है, हाँ। अ कार इज मूविंग ऑन द रोड विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यस, ग्रेड 9 प्रॉब्लम। द फॉलोइंग टेबल, और ये थोड़ा ब्रिटिश या अमेरिकन बुक होता, ओ स्ट्रेट रोड बोल दिया है, तो दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। That means Suvat equations are applicable. We will solve it graphically. We will cross check with Suvat. Agreed? चलो, the following tables gives you the speed and time. सबसे पहले बोला draw a speed time graph using a convenience scale. So you should have a convenience scale and draw a speed time graph. I think you should be able to draw this graph. When the time is 0, the speed is 5. 5 is your initial speed. Your final speed is how much? 30. Okay, then 10 पे 10 and this is uniform acceleration. और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आया आपको, तो इसका स्लोप तो बराबर होगा, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होगा। ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ यूजिंग एंड डिटरमाइन फ्रॉम इट। हमें नंबर 1 क्या निकालने बोला है? हमें निकालने बोला है एक्सीलरेशन क्या है। सबसे पहले आपका दिमाग क्या सोचना चाहिए? ग्राफ क्या है? व्हाट इज द ग्राफ? टेल मी व्हाट इज द ग्राफ? द ग्राफ इज अ स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ से हमें निकालना है एक्सीलरेशन, मतलब हमें क्या चेक करना चाहिए? स्लोप चेक करना चाहिए। वी शुड चेक द स्लोप। अगर अभी भी डाउट है तो ऐसे स्लोप देखो, वाई डेटा, मीटर पर सेकेंड divided by second. Yes, this is meter per second square. I am 100% correct. I should be now looking at the slope. आइए इसका स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। स्लोप निकालने के लिए ये ग्राफ तो बहुत ही प्यारा ग्राफ है, एकदम माइके वाला ग्राफ है। कोई भी 2 पॉइंट्स आप अपने मन से चूज कर लीजिए, एनी 2 पॉइंट्स फ्रॉम योर मन से, 2 गुड पॉइंट्स। चलो हम ये पॉइंट ले लें एक, और एक ये पॉइंट ले लें। नाउ प्ले सुपर मारियो, यू आर हियर, you have to go here, but you can go only like the rook of chess. Either you go this way or you go this way. Now tell me, from going from B to D, you are going from where beta? B to D. Sir, why not you are showing from D to B? No, the time is going in this manner. पहले B, बाद में D. समय इस तरफ जा रहा है। अब भूत तो थोड़ी उल्टा हो गए। So B to D, can you reach B to D directly? No, you are not allowed. You can go only like the rook of chess. So you will come across a rise and you will come across a run. Do you agree or not? Can you tell me B से D जाने के लिए कितना राइज करोगे? 2 स्क्वायर्स राइज करोगे। यहां पे 10 है, यहां पे 20 है, तो कितना राइज किया? 10 राइज किया। हमारा राइज कितना है? 20 minus 10 which is equal to 10. और हम कितना रन करेंगे? टकलक टकलक, 2 स्क्वायर्स। तो यानी 30 minus 10 20, 2 स्केल अलग हैं, ख्याल रखिए। यहां पे ईच स्क्वायर इज 5 यूनिट्स, यहां पे ईच स्क्वायर इज 10 यूनिट्स। बुर्बक की तरह आंसर मत लिख लेना। लुक एट द 2 स्केल्स वेरी नाइसली। हैव यू अंडरस्टूड? तो आप रन कितना कर रहे हो? 2 स्क्वायर्स रन कर रहे हो। ईच स्क्वायर इज हाउ मच? 10 सेकेंड्स। 2 स्क्वायर्स मींस 20 सेकेंड्स। तो योर रन इज 20 सेकेंड्स और योर राइज इज कितना?
10 मीटर पर सेकेंड। तो आपका स्लोप कितना आएगा, कैलकुलेट करो। स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन, है ना। राइज कितना है बेटा 10, रन कितना है 20, आपका स्लोप आया हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर एक्सीलरेशन कितना आया आपका, हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मन में शंका है, हमें एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। आ जाओ, अगर आप एनालिटिकली करोगे तो v इज इक्वल टू u प्लस AT, है ना। ये पूरे जर्नी में एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट ही है, बिकॉज इट्स अ स्लैंटिंग लाइन, इसका स्लोप कांस्टेंट। इसकी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू बताओ कितना है 30, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5, एक्सीलरेशन कितना है मारे नहीं पता, टाइम कितना है 5 से लेके 30 तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, 50 टाइम लगा आपको, ठीक है ना। तो 30 माइनस 5 कितना हो गया 25, 25 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू ए, और ये कुछ नहीं, हाफ इज इक्वल टू ए। आंसर सही है। 1 minute, I'll take the doubt. Have you understood what I did with analytical? I proved whether my graphical workout is correct or not. Yes, Bakul, go ahead with your doubt. Ask as many doubt as you want. Huh? Constant. Can you find out the acceleration is constant or not? Yes, definitely. Just look at how many seconds intervals are there, beta. 10 seconds. Look at what is the change in speed. 10 minus 5 is 5. Every 10 seconds the speed is changing by 5. Every 10 seconds the speed is changing by 5. Every 10 seconds the speed is changing by 5. Constant acceleration. Though they have also mentioned in the question. If it is constant acceleration, they've asked you to make what? VT graph. The VT graph has to be a straight line. Question arises whether it will be from the origin or whether that the data will tell you. 0 पे 0 बोलता तो origin से जाता, 0 पे 0 बोलने से origin से जाएगा, लेकिन हमको क्या बोला है 0 से। Now go to grade 6. अब grade 6 के प्रॉब्लम्स में एक्सेलरेशन होता था, नहीं होता था। जरा उसको चेक कर लेते हैं क्यों एक्सेलरेशन नहीं होता था ग्रेड 6 में। आ जाओ, अब ग्रेड 6 के प्रॉब्लम्स करते हैं। Again we'll try to plot a VT graph. Plot a VT graph with 0 acceleration. What should be the plot? Again, first ask yourself, VT graph से acceleration, VT graph में क्या चीज acceleration बताता है? Slope. हमें acceleration को 0 करना है, यानी कि slope को 0 करना है। Slope को 0 करना है तो लाइन को horizontal कर दीजिए। Is this not acceleration equal to 0? Now, VT graph में displacement निकालना है। What is displacement in a VT graph? Area under the graph. Area under the graph. What is the shape that you are seeing? What is the area of a rectangle? V into T. And when you were a छोटा बच्चा in grade 6, you used to say displacement is equal to V into T. स्पीड इनटू टाइम। ये तो आ गया, बिकॉज उसमें एक्सेलरेशन होता नहीं था उस केस में। आज आपने ग्राफ से प्रूफ कर दिया। बचपन में आप क्या पढ़ते थे? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस इज द एरिया अंडर द ग्राफ ना। व्हाट इज द स्पीड? v। व्हाट इज द टाइम? t। डिस्प्लेसमेंट है, यहां तो डिस्टेंस नहीं है ना हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट ही है, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए, वो प्रॉब्लम तो कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें और भी कुछ है। अब इस प्रॉब्लम का अगला पार्ट करते हैं। ये पार्ट समझ में आया? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 50 सेकेंड्स। डिस्टेंस यू आर नॉट अलाउड टू डू एनालिटिकल, ग्राफिकल। डिस्टेंस इज फाउंड बाय व्हाट? एरिया अंडर द ग्राफ। तो इस ग्राफ का एरिया को प्लॉट करें जरा सा। आइए इस ग्राफ के एरिया को देखते हैं। क्या? हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 50 सेकेंड्स कहां लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? 30 meters 50 seconds में। दिस इज अ स्पीड टाइम ग्राफ। अनन्या, which world are you? You are supposed to find the distance traveled. This is a speed time graph. Very good. स्पीड टाइम ग्राफ में हमें डिस्टेंस कैसे मिलता है? एरिया। तो एरिया के लिए ये तो ट्रेपीजियम हो गया है ना, तो हम इसके एरिया को कैसे निकालेंगे?
नीचे का रेक्टेंगल प्लस ऊपर का ट्राइंगल। नीचे का रेक्टेंगल का एरिया बोलो 5 मल्टीप्लाइड बाय 50। सो या टेल मी योर डाउट। per second, this is speed by 50. 15 to 50 will not solve me. I have to find the area of this shape. This is a trapezium. Either you use trapezium's formula or you break it into a rectangle and triangle. How do you make it two triangles? Why are you not trying to do it from A to H? Why are you making it so complex when you can do it with a simple triangle and this? No, it will not be the same. You are unnecessarily arguing. How will you find out that area? You try to do it the way I am doing. नीचे का rectangle का area बोलो. How much? 5. 5 into 50. ऊपर का triangle का area बोलो half into. Base is how much? 50. And height is from 5 to 30. 25. गड़बड़ी मत करो, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 25. क्लियर? ये कितना हुआ? 25 is 625 and 5 into 50 is 250. तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 600 और 200 पे 800, 875 is our net distance traveled in meters. Let's put our formula. S equal to ut plus half at square. अब वो पुट करके देखते हैं हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। S is equal to ut. U का वैल्यू कितना है? 5. T कितना है? टोटल टाइम 50. Basically you are solving the rectangle's area only. गधे की तरह करने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर सेम आ गया। ये तो रेक्टेंगल का एरिया ही हुआ ना। S is equal to ut, ये तो रेक्टेंगल का एरिया प्लस हाफ इंटू A। एक्सेलरेशन कितना निकला था? हाफ। टी स्क्वायर कितना है बेटो? 50 इंटू 50 कितना है? 5 25। तो 50 इंटू 50 लिख लेता हूं, ठीक है? क्लियर हो गया? इसका वैल्यू कितना आया? 250। ये दोनों कट जाएंगे तो 25 हो जाएंगे ना। 625 हो गया। आंसर कितना हो गया? 875 आ गया। Analytically also answer is correct. This is a maximum problem that you can get at your grade 9. But though it appears very easy at first, try to recall the mistakes that we did. The first mistake, Ananya. She first mistook excitement भी बड़ा डेंजरस है, ये सब लर्निंग है हमारे लिए। पहला अनन्या का मिस्टेक क्या था? उसने स्ट्रेट अवे स्पीड टाइम ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ समझा। फिर अभी का मिस्टेक याद करो, हाइट को उसने 30 पकड़ लिया था, जबकि हाइट होता है कितना? 25। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स लर्न करोगे। Whenever you are checking your paper for a graphical workout, you should always check it analytically. दोनों आंसर सेम आने ही पड़ेंगे। अब जरा वापस रिविजन्स देखो, किस तरह से आपने S equal to ut plus half at square देखा। Everything boils down from the start. This was our first slide. We started to talk about what does a ST graph tell us. ST graph tells us about velocity as long as you are talking about slope, and you goddamn have to talk about slope because the area of an ST graph does not give any conclusion. The most given graph will be a VT graph, क्योंकि उसमें अभी देखो आप, ये जो प्रॉब्लम आपको हमारे बुक से हमने एग्जांपल से लाया, ये प्रॉब्लम कितना स्टाइलिश है। In this problem, they have asked acceleration, for that you use slope. They have asked distance, for that you used area. And what is the graph? It has to be VT, because a VT graph has two type of calculations involved in it. It has area also, it has, तो जब भी आपको क्वेश्चन में VT ग्राफ आ जाता है ना, आप अलर्ट नहीं डबल अलर्ट हो जाइए। AT ग्राफ आपको देने के चांसेस बहुत कम है, because in AT ग्राफ you can only calculate area. And ST ग्राफ दे सकता है, you can only calculate slope. But VT ग्राफ you can calculate. जैसे ही VT ग्राफ दे दिया ना, तो हमारा पहला दिमाग क्या बोलना चाहिए? इसमें मेरे को डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करने बोलेगा, इसमें मुझे एक्सीलरेशन भी बोलेगा, क्योंकि स्लोप एक्सीलरेशन बताएगा, एरिया डिस्प्लेसमेंट बताएगा। Then you should look. Now this graph is very simple. In some problems they may give you mountain, 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 mountain. So you have to break it into individual geometric shapes which you can recognize. You could have done with the trapezium's area. What is trapezium's area? Half into sum of the parallel sides. Half into 5 plus 30
into perpendicular distance, half into 5 plus 30 into perpendicular distance between them, that is 50. करके देखो, half into 30 plus, अगर हम इसको ट्रेपीजियम में देखें तो इसका ट्रेपीजियम के एरिया क्या होता है? ट्रेपीजियम्स एरिया इज हाफ into sum of the parallel sides, 5 plus 30 into perpendicular distance between them, 50. 30 plus 5 is how much? 35. 35 into 2 is 70. 70 into 50. क्या गलती हुआ है बोलो? अरे हाँ 35, हाँ तो ये हो गया हमारा 35 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये 35 हो गया, 50 25 हो गया, 35 into 25 करेंगे तो 875 आएगा आपका आंसर. In that you are using the formula of trapezium's area directly. So it depends upon you what area. हाँ. थर्ड इक्वेशन अगर निकालते हो तो दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. अब आपने v स्क्वायर को फॉर्मूला से निकाला, a को निकाला, अब अप्लाई करके देखो, सिर्फ वही जगलरी करोगे तो आ जाएगा. यस सर, यस सर वहाँ पे हाइट हमें 5 इयर्स अब एक इसको आंसर देने से पहले एक छोटी सी गाली देना चाहूंगा, मंजूर है लेना? वो है भूतनिका. ये भूतनिका, तेरे को ट्रेपीजियम दिख रहा है, इस ट्रेपीजियम में पैरेलल साइड्स कौन से दिख रहे हैं बेटा? 5 और 30, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स. तेरे को परपेंडिकुलर हमेशा ऐसा दिखता है, तो फिर ये और ये पैरेलल है क्या? नहीं है ना. पैरेलल कौन है? ये और ये है. तो परपेंडिकुलर कौन सा हुआ? ये हुआ ना. तो यही तो लिया मैंने. ओ समझ में आ रहा है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग कैसा सोचता है ना, तुम्हारा दिमाग सोचता है कि यार सब कुछ तो मेरे ससुराल के जैसा आंसर आएगा, हमारे को ट्रेपीजियम हमेशा ऐसे ही मिलेगा. ऐसी कोई गारंटी है क्या ट्रेपीजियम ऐसे ही मिलेगा? पर मैं क्या हूं ना, मेरा नाम है सर, आपका नाम है कमीना सिंह, आप हमेशा ट्रेपीजियम ऐसे बना के देते हो बच्चों को. ले बेटा आप बता, अब पैरेलल साइड कौन सा है? ये दो पैरेलल साइड है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा बनेगा? ये ना. हमारे को हमेशा यही परपेंडिकुलर क्यों दिखता है? आई बात समझ में? चले लास्ट टॉपिक. यस The previous question. हाँ, Graphically analyze and solve. the question like this: draw a speed time graph, determine from it. English, determine from it. Determine from it. Get the things from Vakul's house. मेरे घर से थोड़ी आएगा, तेरे घर से आएगा ना. हाँ, आगे और कोई सवाल है? टेप लगा दो मुंह में अभी. डिटरमाइन फ्रॉम इट. फ्रॉम इट बोले तो क्या भाई साहब? ई ग्राफ, उसी से निकालिए. आज हम डोसा खाएंगे, सामग्री वकुल के घर से निकालिए. तो मारा बाप आके डोसा बनाएगा क्या? समझ में आया? चले आइए लास्ट टॉपिक, एक लाइन का टॉपिक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. पहले सर्कुलर मोशन देख लेते हैं. सर्कुलर मोशन, आहा, सर्कुलर मोशन ऐसा लग रहा है जैसे एशियन पेंट्स का ऐड हो रहा है, रंगों की दुनिया में आओ. ठीक है ना. सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन होता है मोशन इन ए सर्कल. मोशन इन अ सर्कल. कैसा? जैसे एक सर्कल में कोई बॉडी घूम रहा है तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन, जैसे ऐसे. ठीक है. अब ये जस्ट इंट्रोडक्शन है बेटा, इसमें कोई पढ़ा के मजा नहीं आता है. सर्कुलर मोशन में एक सेंटर ऑफ रोटेशन होगा और एक बॉडी है जो ऐसे घूम रहा है. एक सैटेलाइट ले लो जो कि प्लैनेट के चारों ओर घूम रहा है, प्लैनेट्स जो कि सन के चारों ओर घूम रहे हैं, with the condition that the orbits are not elliptical but they are circular. But actually our celestial body orbits are all elliptical. But when we do physics calculation, when you go to gravitation and all chapter, they're all taken as circular. फैन हो गया, फैन के ब्लेड का हर एक पॉइंट एक एक सर्कुलर मोशन मार रहा है, हर एक पॉइंट. इमेजिन दिस इज द ब्लेड ऑफ अ फैन, है ना. तो इसका सर्कुलर मोशन लेकिन अलग एक सर्कल होगा. समझ में आ रहा है? मोशन इन अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. अब आपके यहां पे ना इसमें थोड़ा सा एक एडजेक्टिव डाल दिया है. एडजेक्टिव सर्कुलर मोशन. कैसा मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म
सर्कुलर मोशन, ये एडजेक्टिव लग गया आपको। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब तक आप ग्रेड 11 में जाओगे इसको हम पढ़ते हैं यूसीएम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? For a circular motion, a body which does a motion in a circular path is called circular motion. If the body is doing this motion in a constant speed, it is called uniform circular motion. Like a fan right now at a constant speed, a CD disc moving at, an engine shaft moving at 2200 RPM. 2200 RPM मतलब 2200 rotations per minute. CD भी वही स्पीड में घूम रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारा स्पीड जो है, स्पीड वो कांस्टेंट होता है। K मतलब कांस्टेंट, and it should not be a surprise because in the chapter of direct and inverse variation you have learned that K stands for constant. भाई साहब इन लोगों ने वेलोसिटी की बात क्यों नहीं की? Because यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी cannot be constant. Why? Because मैंने बोला था हमेशा वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। कैसे? अगर इस जगह में वेलोसिटी देखोगे ना, द वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू दिस पॉइंट। टेंजेंट इज अ पॉइंट। जैसे आप सोच लो यहां पे आप एक चीज को घुमा रहे हो, वाउ 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 वाउ, और फिर छोड़ दोगे ना, इस जगह पे छोड़ोगे वो श्रिंक कैसे जाएगा। इसीलिए तो ऐसे वो क्लॉ एंकर से जब डेकोइटीज वगैरह करते हैं ना, बड़े जेम्स बॉन्ड टाइप मूवीज में ऐसे घुमाता रहता है ना, देन दे विल सडनली रिलीज, सो इट विल फ्लाई इन अ टेंजेंशियल वे। दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ अ डिस्कस थ्रोअर। You know, discus in Olympics, he will rotate in a circle and then suddenly release. It will go tangentially in that direction. घूमर घूमर डांस करते करते छोड़ दो किसी लड़की का, छिटक के गिरेगा पूरा वहां पे, टेंजेंशियल। इससे आगे आप पढ़ोगे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है? So the velocity is not constant. Why the velocity is not constant? Imagine that if this was my body, now the velocity will be in which direction? This. Sorry. My velocity will be in this direction. However, the speed is same. Therefore, one very big thing, UCM is not uniform motion. It is an accelerated motion. अगर कोई आपको वाइवा लेगा ना, वो ये सवाल पूछ ही देगा। नाम है यूनिफॉर्म मोशन। जब आप मोशन को यूनिफॉर्म करते हो लीनियर में, that means it can never have acceleration. Try to think, what was uniform linear motion? A body is said to be in uniform motion if it travels in a straight line and covers equal distances in equal intervals of time, no matter how small the time intervals are. इधर वेलोसिटी चेंज हो रहा है बच्चा। जब वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन जन्म ले लिया है, क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी। आपने तो सिर्फ मैक को कांस्टेंट किया है, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना। व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस देन इट्स एक्सेलरेशन का बर्थ हो गया। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म जैसे ही आपके कानों में सुनाई देगा, आप सोचिएगा करके एक्सेलरेशन का जन्म हो गया है। और जहां एक्सेलरेशन का जन्म हो गया, यूनिफॉर्मिटी तो मारा गया ना, वो मोशन एक्सेलरेटेड होगा। यही आप ग्रेड 11 में सीखोगे। इसमें एक्सेलरेशन कैसे आ रहा है, क्योंकि वैल्यूज तो सेम रहेंगे, बट तब आपको वेक्टर डायग्राम्स पता होना पड़ेगा। दोनों के वेक्टर डायग्राम से एक नया एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, एंड दैट विल बी नोन एज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दोनों से इतना इजी नहीं है। रोटेशनल मोशन जो अच्छा करता है, he is the best in physics. So always remember, a circular motion is a uniform circular motion. But when you say it in terms of linear, it is not uniform motion. It's an accelerated motion. Why? No doubt the velocity is, the speed is always constant, but due to the circular nature, the velocity is keeping on changing at every time because its direction is changing. आगे चल के आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, उसका मोशन भी एक्सीलरेटेड है। फिर आप पढ़ोगे कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सीलरेट करना शुरू करता है, वो रेडिएशन रिलीज करता है। आपका माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव कैसे रिलीज कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर चार्जेस है। देयर इज अ स्मॉल थिंग कॉल्ड अ मैग्नेट्रॉन इन दैट माइक्रोवेव ओवन, व्हिच इज द हार्ट ऑफ द ओवन। वो बोलेगा साहब मैग्नेट्रॉन खराब हो गया। द मैग्नेट्रॉन टेक्स हाई वोल्टेज and accelerates charge, then only microwaves are created.
सेल फोन में मेरे को फोन आया, फोन कैसे आता है? वेव क्रिएट होता है। वेव कौन क्रिएट होता है? चार्ज। चार्ज को एक्सीलरेट किया जाता है और वही रेडिएशन आपके सर में भी घुस रहा है। Whenever a charged body moves in a circle, it will always create acceleration. And whenever you accelerate a charged particle, you will be creating electromagnetic waves. Physics कितना इंटरेस्टिंग है, वो सब तब समझना है। तो यहाँ एक चीज जान के रखिए, सर्कुलर मोशन में जो भी है वो एक्सीलरेटेड मोशन है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, but it's an accelerated motion because velocity is changing. Today was our 8th class, which is equivalent to 2 months that we took to understand this first chapter. इतना डिटेल में जाके अपने क्लास में किसी भी लड़के को पूछिए, इतना डिटेल में वो पढ़ा है क्या? अब आपका नॉलेज इतना सुंदर खुलेगा ना। Next chapter, now remember what I told in the first chapter. In first chapter, we understand facets of motion. What was your speed? What was your acceleration? What was your initial velocity? How much displacement did you cover? Did I ever ask you, why did you have motion? No. That I will ask you in your next chapter. Where you are going, guys? This was kinematics of motion, and then you'll see kinetics of the motion. Here you don't study the reason or the cause, you just study the impacts. The reason you will be studying in the next chapter. Who caused you that motion? Why did you accelerate? सर लात लगा पीछे से इसीलिए भागे। बैल आ रहा था सर सींग निकाल के, और उसी दिन मैं लाल कपड़ा पहना था इसीलिए मैं एक्सेलरेट कर गया। That means some fear force popped into it. So next chapter will be all about force. Will we forget acceleration? No, we cannot. Will we forget displacement? No, we cannot. ये रहेगा आपके साथ। अब आगे जाके कोई अगर डिस्प्लेसमेंट बोले तो आपके दिमाग में क्लियर आ जाए, डिस्प्लेसमेंट मींस टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच हैज गॉट अ मैग्नीट्यूड, व्हिच हैज गॉट अ डायरेक्शन, एंड टिल द मोमेंट द डिस्प्लेसमेंट इज, इट्स ऑलवेज हैज टू बी इन स्ट्रेट लाइन. So what was chapter 1? Motion? No. Chapter 1 was uniformly accelerated motion in a straight line where SUVETs are applicable. और अगर आप 2 minutes ले लो, फिर से आप देखो, your equations were known as the SUVET equation. A है इसीलिए क्योंकि U और V है. दो वेलोसिटी रहेगा तभी ना A का जन्म होगा. दो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज A, और S तो रहेगा ही. तो बहुत सारे यहां सुवेट एप्लीकेबल ही नहीं होगा. ये स्ट्रेट लाइन मोशन कहां है मैडम? आप खुद ही सोचो, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है? नहीं है. यहाँ पे ये यहाँ पे A एप्लीकेबल, यहाँ पे सुवेट अप्लाई नहीं होगा. हमने एक मिसाइल मारा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा? आप क्या करोगे? S इक्वल टू यूटी प्लस. मिसाइल का ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक, नॉट स्ट्रेट लाइन. सुवेट इज नॉट एप्लीकेबल देयर. हाँ हो सकता है बिल्कुल. आपका साइकिल जब आप चलाते हो ब्रेक चेप देते हो ना, तो रिटार्ड नहीं हो रहा है? रिटार्ड हो रहा है, बिल्कुल हो सकता है. मिक्सी, ड्रिल मशीन, रिटार्डेशन. फिर दबाएंगे, रिटार्डेशन. अब जब हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं ना, तो हम उसमें ये पढ़ते हैं कि ड्रिल है ना, ड्रिल बिट. अब ड्रिल की, every time people think about IT now, I'm not against IT, but the children have been not told the facets about mechanical, electrical and civil. आप एक drill bit को देखो, the drill bit grows inside the concrete wall, it's drilling. What about the debris? The debris can't remain inside ना. The debris has to come out. कहां से आएगा? जिस होल से आप छेद कर रहे हो, तो डेब्री को आने के लिए तो रास्ता चाहिए ना. डेब्री कहां से आएगा? आप ड्रिल बिट को अच्छे से देखिए, ड्रिल बिट में फ्लूट्स रहते हैं, फ्लूट्स, और उस फ्लूट में पैराबोलिक पाथ में डेब्री अपना वेलोसिटी लेगा. जैसे ही आप एक्सीलरेशन देते हो ना, डेब्री का भी टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ना शुरू होता है, उसी स्पीड से डेब्री बाहर आएगा, वरना छेद होगा कहां से? Look at the invention, यार, how nice people have done. The same machine will go in and it will clean the path also. आपको अलग से स्क्विरल की तरह जाके ऐसे डेब्री थोड़ी निकालना पड़ता है. See, but if you are using a chisel like a carpenter, then every time you hammer, चक चक ऐसे बाहर निकालोगे, चक चक बाहर निकालोगे. इसमें नहीं चाहिए. So if the drill bit is good and if the machine is good, the noise will be less, the groove will be far more smooth.
एक बार मारोगे। और जो पैसा बचाने वाला ड्रिल मशीन खरीदता है, उसमें कुछ नहीं, ड्रिल गर्म होता रहेगा और धूल बाहर से भी नहीं निकलेगा, खराब होता रहेगा। अच्छा ड्रिल मशीन है, एक बार में मारोगे। तो बड़े बड़े होल्स जब आप करते हो तो गर्म भी हो जाएगा ना, यू हैव टू कूल, उनमें कूलेंट्स भी रहते हैं। एज सून एज यू स्टार्ट ड्रिलिंग, coolant will flow, there will be a coolant pump. Look at the engineering, the pump will start flowing. जैसे कभी कंस्ट्रक्शन होता है ना, जिम वगैरह के पास में लोहे काटते रहते हैं, तो आप देखना मिल्क जैसा एक चीज पोर करते रहता है, दैट इज अ कूलेंट। वरना ब्लेड टूट जाएगा, कितना फ्रिक्शन। जस्ट मूव योर हैंड ट्वाइस ऑन द टेबल एंड सी हाउ मच योर फिंगर एज गेट्स हीटेड अप। जस्ट मूव योर फिंगर एज ट्वाइस ऑन द टेबल, कितना हीट हो गया, देखा? हाँ, और आपका ड्रिल मशीन घूम रहा है, नेवर एवर टच दैट बीट, ये वेल्डिंग हो जाएगा हाथ का। तो वहां पे कूलेंट गिरते रहता है। But in drill machines, we don't need coolant. Drill machine is, now question arises, how is a drill cooled? Air cooled है वो, air itself cools it. So see how much, to give that much of rotation, what should be the motor's rotation? For that motor's rotation, how much power the motor will pull? What should be the quality of the wire? So that the trip does not fall, load ज्यादा नहीं हो गया। सारे चीजों में इंजीनियरिंग है। हम खाली सोचते हैं वो आर्डिनो लेके रोबोट ऐसा ऐसा हो, माय सन इज इनटू व्हाइट हैट जूनियर, बट बेसिक्स ऑफ मैकेनिज्म नहीं समझा, खाली कोड चोरी करके कोड पुश करता है और लाइट जलाता है। आजकल वो भी चैट जीपीटी दे देता है कोड, पहले तो कोड लिखता था बच्चा। हमेशा चीजों को देखिए, स्पैनर को ऐसे ही क्यों डिजाइन किया, प्लायर को ऐसे ही क्यों डिजाइन किया, कुछ तो रीजन होगा, ठीक है? Still is such a beautiful